Hello students, welcome back to CG Board online classes. In this video, we are going to solve exercise of the lesson The Bell. So it is from your book My English Garden, Unit 4, Learning from Life, Section C, The Bell. So let's start. Playing with words. Binomial expressions. So binomial expressions. सुनते ही आपको याद आ रहा होगा कि मेरा एक वीडियो है जो आपके इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में, उसमें आप जाकर बायनोमियल एक्सप्रेशंस को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. ओके, सो बायनोमियल एक्सप्रेशंस आर वर्ड पेयर्स दैट आर ऑफन जॉइंड बाय अ कंजंक्शन और अ प्रीपोजिशन. सो जो बायनोमियल पेयर्स होते हैं वो ऐसे वर्ड पेयर्स होते हैं जिनको हमें कंजंक्शन या फिर प्रीपोजिशन से ज्वाइन करते हैं हम. The words always appear in the same order and are usually joined by or, to, but और and. Okay? So हमेशा इनका ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल टू वर्ड्स हैं तो उनके बीच अगर यदि एंड है, और है आपका, बट है या फिर टू है, ये कंजंक्शन या प्रीपोजिशन अगर लगे हैं तो आप ये नहीं कि एंड के पहले और एंड के बाद वाले वर्ड का जो ऑर्डर है वो चेंज कर दे. आपको हमेशा उसका करेक्ट ऑर्डर में ही उसे लर्न करना है. ओके, सो तभी वो बायनोमियल एक्सप्रेशंस बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल बाय एंड लार्ज. सो यू कांट राइट लार्ज एंड बाय, इट्स ऑलवेज बाय एंड लार्ज. ओके, सेकेंड इज स्ट्रेट एंड लाइफलेस. स्ट्रेट एंड लाइफलेस. थर्ड राइट और रॉन्ग. फोर्थ स्ट्रेंज बट ट्रू. सो आप देख रहे होंगे बट से ऐड हुआ है और एंड. ओके, सो ये कंजंक्शन है आपका एंड और ओके एंड बट. सो इस तरीके से बायनोमियल एक्सप्रेशंस आपके बनते हैं. नाउ यू हैव टू एक्सरसाइज ए, यू हैव टू मैच दीज बायनोमियल पेयर्स विद देयर मीनिंग्स. सो आप देख रहे हैं कि आंसर्स तो ऑलरेडी हैं बट फिर भी वी हैव टू सॉल्व. ओके, सो बायनोमियल पेयर्स को उनकी मीनिंग्स के साथ मैच करना है. एंड इसी तरीके से सारे ही जो बायनोमियल पेयर्स होते हैं, बाय एंड लार्ज, स्ट्रेट एंड लाइफलेस, राइट और रॉन्ग, स्ट्रेंज बट ट्रू, ठीक है, इन सब की मीनिंग्स भी आपको पता होना चाहिए. ओके, सो कॉलम ए, कॉलम बी. सो फर्स्ट इज हसल एंड बसल. हसल एंड बसल मीन्स, yes, so answer is a lot of noisy activity caused by people. Okay, so first is your E. फर्स्ट का आपका होगा E. सेकेंड loud and clear. So loud and clear means easy to understand. Second D. Third is safe and sound. Safe and sound means not in any danger. Third A. Fourth more or less. More or less means approximately. So your fourth is fifth. Next is rules and regulations. So here fifth C, a set of rules that one is supposed to follow. Sixth step by step. So here step by step B, methodically. Okay, method wise. Okay, so here hustle and bustle, a lot of noisy activity caused by people. Loud and clear, easy to understand. Safe and sound, not in any danger. More or less, approximately. Rules and regulations, a set of rules that one is supposed to follow. Step by step, methodically. Okay? Yes. So next question is, complete these sentences using binomial pairs from the box. So here you are given with binomial pairs and you have to complete these sentences using the appropriate binomial pair. आपको इन fill in the blanks को binomial pair से fill करना है. Okay? So yes, let's start. First, कौन कौन से binomial pair से हम देख लेते हैं. Take it or leave it. Second, back and forth. Then after, yes, then back and forth. Third, make or break. Fourth, part and parcel, little by little, wear and tear. Okay, so first is dropping a few clues as if by mistake was. So what is the answer here?
Yes, so the answer is part and parcel. Okay, first part and parcel of their plan. Second is blank, he gained the confidence of the endured cat by giving it food every day. So second is little by little, slowly, slowly. Okay, so second is little by little. First is part and parcel, second little by little. So slowly, yeah, little by little, he gained the confidence of the injured cat by giving it food every day. Third, there were many emails going blank at a rapid pace. That is how the problem got resolved so fast. So the third is back and forth. There were many emails going back and forth at a rapid pace. That is how the problem got resolved so fast. Fourth, this is the point of blank. If we fail now, we will never succeed. So fourth is, this is the point of make or break. If we fail now, we will never succeed. Fifth, I cannot give you a better offer than this. I suggest you either take it or leave it. Okay, fifth is take it or leave it. Fourth one, make or break. And third one, this is the point of no, there were many emails. This is back and forth is third. Okay, sixth one, yes, wear and tear left, so definitely it is sixth. So let's read. Due to the wear and tear over the years, we could not get a good deal for our car. Yes, so students, first देखिए, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू द वियर एंड टीयर, जो कार में वियर एंड टीयर थे उस वजह से वो अपनी कार का जो गुड डील है या गुड प्रॉफिट जो उसे गेन करना था वो नहीं मिला. फिफ्थ की मीनिंग समझिए, आई कैन नॉट गिव यू अ बेटर ऑफर देन दिस, कि मतलब इससे ज़्यादा तो मैं आपको ऑफर नहीं कर सकता, इससे बेहतर. आई सजेस्ट यू ईदर, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ या तो इसे क्या कीजिए, ले लीजिए. आई ईदर टेक इट और लीव इट, मतलब कि ऑफर जो उसने बनाया है ना, वो बेस्ट ऑफर दे रहा है. फोर्थ, दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्लैंक. इफ वी फेल नाउ वी विल नेवर सक्सीड. सो ये जो पॉइंट है मेक करने का, या तो बनाने का है या तो ब्रेक करने का है. मतलब या तो हम पास होंगे या तो सक्सीड होंगे या फिर फेल होंगे, सक्सेसफुल और फेलियर. सो इफ वी फेल नाउ वी विल नेवर सक्सीड, कि केवल हमारे पास एक ही चांस है, ऐसा मीनिंग है. ओके, सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बायनोमियल पेयर्स and watch my video, okay, on YouTube channel, the grammar list, yes, playlist of grammar, you will get the binomial pairs. Okay, so next, learning the language. So it's your grammar again, learning the language. A, rewrite these sentences using the correct degree of adjective. So here you have to rewrite the sentence. आपको जो एडजेक्टिव्स हैं उसको फाइंड आउट करना है, उनकी करेक्ट डिग्री. आपको याद होगा कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाला जो वीडियो है यूट्यूब में इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में, उसमें आपको समझाया गया है कि कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ कंपैरेटिव एंड कहाँ सुपरलेटिव, ये 3 डिग्रीज होती है और कहाँ कहाँ आपको कौन से यूज करनी है. एंड पॉजिटिव डिग्री कब यूज करते हैं, उसके साथ क्या लगता है, देन कब लगता है, द कब लगता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. First, she felt even most awkward when she saw the women at the temple. So here आप देखिए यहाँ पर she felt even most awkward. So most awkward तो नहीं होगा, she felt even more awkward. Okay, so यहाँ पर आपका करेक्शन क्या होगा, most की जगह आपको रिप्लेस करके more करना है and rewrite the sentence. She felt even more awkward when she saw the women at the temple. ठीक है, और भी ज्यादा awkward फील की जब वो women को देखी. मतलब awkward तो वो पहले से फील कर रही थी, बट पहले की सिचुएशन और बाद की सिचुएशन मीन्स वुमेन को जो क्राउड था टेम्पल पे, जब क्राउड देखी
वुमेन को, और जब उसके पहले भी वो ऑकवर्ड फील कर रही थी। तो यहाँ पे टू सिचुएशंस को कंपेयर किया जा रहा है। सो हमेशा टू सिचुएशंस पे हम कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं, और मोस्ट आपका सुपरलेटिव है, तो मोस्ट की जगह आपको क्रॉस करके मोर पुट करना है एंड रीराइट द कंप्लीट सेंटेंस। ओके, सेकेंड इज द ग्रेवेस्ट फेसेस ऑफ द वुमेन स्केयर्ड हर। तो यहाँ पर ग्रेवेस्ट नहीं होगा, बिकॉज फेसेस, सारे फेसेस की बात की जा रही है। सो हियर द ग्रेव फेसेस, ओके, द ग्रेव फेसेस ऑफ वुमेन, क्योंकि ग्रेवेस्ट मीन्स सब फेस में जो सबसे ज्यादा सैड हो, ठीक है ना। जब हम किसी एक के बेस्ट होने की या वर्स्ट होने की ये बात करते हैं सुपरलेटिव, बट यहाँ पे सारे फेसेस की बात कर रहे हैं। सो हियर द ग्रेव फेसेस ऑफ द वुमेन स्केयर्ड हर। ओके, ग्रेवेस्ट की जगह क्या बन जाएगा, ग्रेव। थर्ड इज दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट बेल इन दिस एरिया। तो मोस्ट भी है एंड बिगेस्ट भी, इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये मोस्ट को कट करके दिस इज द बिगेस्ट बेल, ठीक है, मोस्ट रिमूव करना है आपको, देन दिस इज द बिगेस्ट बेल इन दिस एरिया। दिस सॉन्ग इज वेरी स्वीटर। तो केवल एक सिंगल सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं, देन पॉजिटिव डिग्री, सो दिस सॉन्ग इज वेरी स्वीट होगा। ओके, नॉट स्वीटर, ठीक है, स्वीटर नहीं होगा, ये बन जाएगा आपका स्वीट। दिस सॉन्ग इज वेरी स्वीट। फिफ्थ इज दिस मूवी वॉज वर्स्ट देन द प्रीवियस वन। अब देखिए, दिस मूवी एंड प्रीवियस मूवी, दो मूवी का कंपैरिजन किया जा रहा है, एंड वेयर एवर वी कंपेयर टू थिंग्स we have to use comparative degree. And what is the comparative degree of worst? worst तो आपका comparative नहीं, worst is superlative degree. superlative किसका है, ये bad का। bad is your positive, then after आता है bad के बाद WORSE, worse। तो ये आपका है comparative, जब two things को compare करते हैं। so worst की जगह आपको क्या लिखना है, WORSE, worse। okay, so the answer will be the movie was worse than the previous one. And one more thing, आप एक चीज से और भी इसे रिमाइंड कर सकते हैं कि जहां भी then होता है, ओके, THAN then जहां भी होता है, आपको वहां क्या यूज करना होता है, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर वर्स देन, WORSE, वर्स देन। और ये वर्स्ट से आप समझ जाएंगे, ये तो सुपरलेटिव था, तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है, क्योंकि इसके आगे देन लगा है, तो देन है तो क्या आ जाएगा, वर्स। द मूवी वॉज वर्स देन द प्रीवियस वन। सिक्स्थ, कलाम इज द फ्रेंडलियर पर्सन आई नो। सो द है, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो जितने पर्सन्स को वो जानता था, मतलब वो बहुत सारे पर्सन्स की बात कर रहे हैं। सो कलाम इज द फ्रेंडलीएस्ट पर्सन। फ्रेंडलियर का क्या बन जाएगा आपका, फ्रेंडलीएस्ट। कलाम इज द फ्रेंडलीएस्ट पर्सन आई नो। सेवेंथ इज द एलिफेंट इज द मोस्ट। सेम मिस्टेक, द एलिफेंट, द तो करेक्ट है, मोस्ट की जगह क्या बन जाएगा, रिमूव होके बिग का बन जाएगा बिगेस्ट। द एलिफेंट इज द बिगेस्ट लैंड एनिमल। ओके, द एलिफेंट इज द बिगेस्ट लैंड एनिमल। द नेक्स्ट इज 8, she was taller enough to reach the bell. So here the answer is she was tall enough to reach the bell. She was tall enough. Okay, taller नहीं होगा आपका, क्योंकि वो अकेले की बात किया जा रहा है उसकी, तो tall enough। एंड यहाँ मोस्ट को रिमूव करना है, the biggest। Okay, done? Yes. So next is, now this is about writing. Next is your writing. A, imagine you are the girl in the story. A local daily reports your act of defiance. Okay? Yes, the media is conducting a fierce debate on whether or not you are right. Okay? Write a letter to the editor of a local daily justifying your point of view. You may use the format given on page number 39. Okay, I show you the format. Okay, and you are a girl in the story. A local daily reports your act of defiance. Okay, the media is conducting a fierce debate on whether or not you are right. So here
first I will show you the format, and in our grammar portion we will do the letter writing properly. Okay, so just have a look at the format. Have a look at the format of the letter. Yes, look, this is the format. You may use this format: from, date, to, then what is the subject, salutation, hi, hello, okay, body of the letter, then warmly, from. Okay, so look here, from मतलब आप कहाँ से, ओके, आप कहाँ से, योर एड्रेस, फ्रॉम में आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है. देन आफ्टर, यस, देन आफ्टर डेट, जिस डेट पे आपने लेटर लिखा. टू, जिसे आपने लिखा. सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पे आप लेटर लिख रहे हैं. सैल्यूटेशन, कि आपको ग्रीटिंग्स करनी है यहाँ पर, हेलो सर, ओके, रिस्पेक्टेड, वट एवर. बॉडी ऑफ द लेटर, अब आप उस मैटर को एक्सप्लेन करेंगे कि आज जो आपके सब्जेक्ट था. वार्मली, यहाँ पर आप लास्ट में रिगार्ड्स दे रहे हैं. वार्मली, जो भी आपका नेम है, सिग्नेचर के ऊपर आपका नेम. ओके, फ्रॉम. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द लेटर, एंड लेटर राइटिंग हम डिटेल में अपने ग्रामर पोर्शन में करेंगे. So this is all about this lesson, the bell. Hope you understood the lesson properly. Thank you, dear students. Thank you for watching.